Assalamualaikum dear students. This is our third video in Unit 10 पेशावर बोर्ड फर्स्ट ईयर कोर्स। स्टूडेंट्स, हमने गुज़िश्ता वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कुछ आइडेंटिटीज़ डिराइव किए थे। उनमें से इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं, जिसमें हमने टेंजेंट की आइडेंटिटी यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में कहता है कि फाइंड tan ऑफ 15 डिग्रीज एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने चूँकि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने 15 को दो ऐसे एंगल की सम या डिफरेंस में लिखना है जिसके लिए हमें tan की एग्जैक्ट वैल्यू का पता हो। हम टेबल से पढ़ चुके हैं tan ऑफ 45 को भी और tan ऑफ 30 को भी। अब जानते हैं कि 15 45 माइनस 30 के इक्वल है, तो इसलिए हमने tan 15 को लिख दिया tan 45 माइनस 30। अब हमारे पास अगर ये 45 अल्फ़ा हो जाए और ये 30 बीटा हो जाए, तो ये फार्मूला बनता है tan अल्फ़ा माइनस बीटा का। हम आइडेंटिटीज़ में से 6 वाले को लेते हैं, जिसमें हमने tan अल्फ़ा माइनस बीटा पढ़ा है। दिस इज़ इक्वल tan अल्फ़ा tan बीटा माइनस 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। हमारे पास यहाँ tan अल्फ़ा की जगह tan 45 आएगा, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा की जगह वैल्यू है 45 और बीटा की जगह वैल्यू है 30। सो अल्फ़ा इज़ रिप्लेस्ड बाय 45 एंड बीटा इज़ रिप्लेस्ड बाय 30। स्टूडेंट्स, हम टेबल से पढ़ चुके हैं कि tan 45 1 के इक्वल है और tan 30 1/√3 के इक्वल है। तो इसलिए tan 45 की जगह हम 1 और tan 30 की जगह 1/√3 लेते हैं। यहाँ भी हम tan 45 की जगह 1 और tan 30 की जगह 1/√3 लेते हैं। यह हमने 3 एलसीएम लिया तो हमारे पास √3 माइनस 1 आया। यहाँ भी हमने 3 एलसीएम लिया तो √3 प्लस 1 आया। √3 को हमने √3 से कैंसिल कर दिया। सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 15। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 42 डिग्रीज, cos 12 डिग्री, cos 45 डिग्री एंड sin 12 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर इस रिलेशन को इस ऑब्जर्व कर दे तो ये साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा से मिलता जुलता है। तो हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम आइडेंटिटी 2 देख लें और इसके लेफ़्ट राइट को इंटरचेंज कर दे, आप यहाँ से आइडेंटिटी 2 देख सकते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दिस केस sin alpha minus second is equal to sin first cos second minus cos first sin second। अगर हम इसके लेफ्ट राइट को इंटरचेंज कर लें तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है sin first cos second minus cos first sin second is equal to sin first minus second. First is alpha and second is beta, so we have sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta is equal to sin alpha minus beta। यहाँ पे हम अल्फ़ा की जगह 45 और बीटा की जगह 12 लेते हैं। सो साइन 45 cos 12 and cos 45 sin 12, this is equal to sin of 45 minus 12, and you know that 45 minus 12 is equal to 30, and from the table we have observed that sin of 30 is equal to 1/2. So the value of sin 30 is 1/2, and this is the exact value of the given expression. Now dear students, first we come to know which function is positive in which quadrant. So we come to this one, the upper portion at the right of the line. The first result is sine and cosecant. You know that the reciprocal of sine is cosecant. Sine and cosecant are positive in first quadrant and second quadrant, and both these are negative in second quadrant and both these are negative in third quadrant and fourth quadrant. Sorry, this is not second, this is the third quadrant and fourth quadrant. So these are negative in third quadrant and fourth quadrant. Similarly, cosine and its reciprocal secant are positive
if theta is in first quadrant or fourth quadrant, and negative if theta is in second quadrant or third quadrant. Tangent and its reciprocal cotangent are positive if theta is in first quadrant or third quadrant, and negative if theta is in second quadrant or fourth quadrant. This is summarized in the figure here. In the first quadrant, all trigonometric functions are positive. So we have written A. A denotes that all trigonometric functions are positive in first quadrant. In the second quadrant, we have written S. S is for sine. But be careful, if sine is positive, its reciprocal cosecant is positive. So in second quadrant, we have sine and cosecant positive, and the remaining four are negative here. थर्ड क्वाड्रेंट में हमने टी लिखा है, टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंट. जब टेंजेंट पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए. सो हम कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव है, और बाकी चार थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने सी लिखा है, जिसका मतलब है कि कॉस पॉजिटिव है, और जब कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सेकंड भी पॉजिटिव होगा. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव है और बाकी चार नेगेटिव. Again, in first quadrant, all trigonometric functions are positive. In second quadrant, sine and cosecant are positive. Remaining four are negative. In third quadrant, tangent and cotangent are positive. Remaining four are negative. In fourth quadrant, cos and secant are positive. Remaining four are negative. Now, dear student, in example number 3, it is given that sin alpha is 12 over 13, cos beta is 3 over 5, where alpha and beta are the first quadrant. Students, when alpha and beta are in first quadrant, all the trigonometric functions would be taken positive. Find in which quadrant does alpha plus beta lies. Dear students, which function, which identity we must use in order to check that whether alpha plus beta is in first quadrant or in second quadrant. We know that in the first quadrant and in the second quadrant, in both these quadrants, sign is positive. चूँकि आप जानते हैं अल्फा बीटा दोनों पहले क्वाड्रेंट में हैं, दोनों के ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है अल्फा प्लस बीटा, वो या तो पहले क्वाड्रेंट में होगा और या दूसरे क्वाड्रेंट में. चूँकि साइन पहले और दूसरे दोनों में पॉजिटिव एक जैसा साइन रख रहा है, तो इसलिए हम साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हमें पता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हो तो कॉस पॉजिटिव होगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हो तो कॉस नेगेटिव होगा. इसलिए इस रिलेशन को, इस अल्फा प्लस बीटा के क्वाड्रेंट को चेक करने के लिए हम कॉस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कॉस की आइडेंटिटी यूज करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन अल्फा है, हम कॉस अल्फा निकालेंगे. कॉस बीटा है तो हम साइन बीटा निकालेंगे. हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसी तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. स्टूडेंट, कॉस अल्फा फाइंड करने के लिए हम कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इस्तेमाल करते हैं. हम जानते हैं कि साइन अल्फा 12/13 है, स्क्वायर किया 144/169, एलसीएम लिया तो 25/169 आया. दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा में तब्दील हो और इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमने 5/13 लिया. स्टूडेंट, चूँकि अल्फा पहले क्वाड्रेंट में है और हमें पता है कि कॉस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए हमने कॉस अल्फा के साथ पॉजिटिव साइन लिया. अब हम साइन फाइंड करते हैं. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. हमने थीटा की जगह बीटा लिया, सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा. हमें कॉस बीटा दिया गया है जो 3/5 के इक्वल है. हमने स्क्वायरिंग कर दी, 9/25 आए, एलसीएम लिया तो 16/25 आए. अब साइन स्क्वायर बीटा से हम साइन बीटा निकालते हैं, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं.
स्क्वायर रूट लिया तो साइन बीटा आया, और 16/25 का स्क्वायर रूट लिया तो 4/5 आया। यहाँ चूँकि बीटा पहले क्वाड्रेंट में है और आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया और नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया। स्टूडेंट, हम पहले से ये बात जान चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा या तो पहले क्वाड्रेंट में होगा और या दूसरे में, क्योंकि अल्फ़ा बीटा अगर पहले क्वाड्रेंट में हो तो इसका सम या तो पहले में होगा और या दूसरे में। मिसाल लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू अगर 40 है और बीटा की वैल्यू 45 है, दोनों को ऐड करें, आंसर 85 आया। अल्फ़ा बीटा दोनों पहले क्वाड्रेंट में है, उसका सम 85 वो पहले क्वाड्रेंट में। अगर अल्फ़ा 40 है और बीटा 60 है तो अल्फ़ा बीटा दोनों पहले क्वाड्रेंट में है, लेकिन उसको सम कर दिया तो आंसर 100 आता है जो दूसरे क्वाड्रेंट में है। अगर अल्फ़ा बीटा पहले क्वाड्रेंट में हो तो इसका सम या तो पहले में होगा या दूसरे में होगा, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि कॉस पहले में पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव है, तो इसलिए हम कॉस का इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर पॉजिटिव आया तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा पहले क्वाड्रेंट में होगा, और अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। स्टूडेंट्स, हमने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की आइडेंटिटी पढ़ी है कि दिस इज कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हम इनमें वैल्यूज डालते हैं। हम जानते हैं कॉस अल्फ़ा 5/13 है, कॉस बीटा 3/5 है। इसी तरीके से साइन अल्फ़ा 12/13 है और साइन बीटा 4/5 है। मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया 15/65 एंड 48/65। एलसीएम लिया तो हमारा आंसर -33/65। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब है ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सिंस कोसाइन इज नेगेटिव, सो वी कैन से दैट अल्फ़ा प्लस बीटा is in the second quadrant. This is the end of the third video. Goodbye. Khuda Hafiz.